والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے پیارے بچوں، اپنی اسمبلی میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، اسمبلی میں تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر حسان۔ آئیے سر حسان تلاوت قرآن پاک کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادۃ، هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہی نہایت مہربان بہت رحمت والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امن بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، بہت عزت والا، بے حد عظمت والا، اپنی بڑائی بیان فرمانے والا ہے۔ اللہ ان مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ وہی اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا ہے۔ سب اچھے نام اسی کے ہیں، آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہر چیز اسی کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی پیاری تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم بلاتے ہیں سر سہیب کو، جو آپ کو ایک حدیث پاک سنائیں گے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام یاد کریں گے۔ آئیے سر سہیب۔ حدیث پاک، القہقہۃ من الشیطان، یعنی کہکا شیطان کی طرف سے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہم نے الحمدللہ اسماء النبی اسٹارٹ کے 10 یاد کر لیے تھے، آج ہم انشاءاللہ 11 سے لے کے 15 تک یاد کریں گے۔ آج کا جو پہلا نام ہے وہ ہے رشید
رشید رشید رشید مشہود 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 بشیر 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 نذیر 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 داع 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 رشید رشید مشہود مشہود بشیر بشیر نذیر نذیر داع داع یہ نام کس کس کو یاد ہو چکے ہیں؟ تمام کو یاد ہو چکے ہیں؟ تمام ایک ساتھ مل کے سنا دیں. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بچوں، سر سہیب نے آپ کو اسماء النبی یاد کروائے. اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں پیارے بچوں، اب ہم اسمبلی میں کلام کو شامل کرتے ہیں اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر سفیان. آئیے سر سفیان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اے کاش تصور
बरहा से चिट्ठी मिली हो, काश तसव्वुर में मदीने की गली हो, और यार मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आपने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। चलें प्यारे बच्चों, अब हम इल्म इज़ाफ़े की दुआ को पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बी रब्बी ज़िदनी ज़िदनी इल्मा, इल्मा, रब्बी रब्बी ज़िदनी ज़िदनी इल्मा, इल्मा, रब्बी रब्बी ज़िदनी ज़िदनी इल्मा, इल्मा, रब्बी रब्बी ज़िदनी ज़िदनी इल्मा। इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। चलिए प्यारे बच्चों, अब हमारी असेंबली का वक्त ख़त्म हो चुका है। अब सब लाइन बनाकर अपनी क्लासेस में चले जाइए। स्कूल हो तो ऐसा, क्या बात है, दीन और दुनिया के आदाब सीखे जहाँ, दीन और दुनिया के आदाब सीखे जहाँ। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? तो बच्चों, हिस्ट्री का यूनिट स्टार्ट हो गया है। आप सब बच्चे हिस्ट्री के बारे में सुनने के लिए रेडी हैं? जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये बताएं, हमने अपनी हिस्ट्री की स्टार्टिंग सबसे पहले किस इंसान से की थी? सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की लाइफ से की थी। जी शाबाश। और लास्ट क्लास में हम आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में भी बता चुके थे कि आपने एक बहुत बड़ी कश्ती बनाई थी, में आप पर ईमान लाने वाले लोग सवार थे। कौन से लोग सवार थे? और उसमें जानवर भी मौजूद थे। फिर एक बहुत बड़ा तूफान आया था, कश्ती चलने लगी थी और कश्ती में जो लोग सवार थे वो सब बच गए। इसके अलावा सारी दुनिया के लोग खत्म हो गए और जानवर भी खत्म हो गए। बच्चों, आज हम कुछ मजीद बातें सुनेंगे। आप लोग तैयार है ना? जी, तो चले स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती में जानवरों को सवार कर रहे थे तो एक दिन सांप और बिच्छू कश्ती में आने लगे। कौन आने लगे? तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोक दिया। फिर सांप और बिच्छू ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, आप हमें कश्ती में सवार कर लें। हम वादा करते हैं कि जो शख्स सलामुन अला नूह फिल आलमीन पढ़ेगा, हम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सर फिर क्या हुआ? फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को कश्ती में सवार होने की इजाज़त दे दी और वो दोनों भी सवार हो गए। बच्चों, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती तूफान के बाद रुकी और आपको ये मालूम करना था कि कहीं ज़मीन पर पानी खुश्क होकर ज़मीन नज़र आई है या नहीं, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पहले कौवे को भेजा, लेकिन वो रास्ते में रुक गया और वापस नहीं आया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस पर लानत कर दी कि वो हमेशा डरता रहेगा। सर उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौन से परिंदे को भेजा था? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजा। कबूतर वापस आया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बताया मक्के शरीफ में ख़ास जगह यानी हरम में पानी खत्म हो चुका और वहाँ लाल रंग की मिट्टी नजर आ रही है। कबूतर के दोनों पाँव मिट्टी से लाल हो गए थे। फिर कबूतर ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि मेरे गले में एक खूबसूरत हार हो और मेरे पाँव सुर्ख यानी रेड हो जाएं और मुझे हरम में रहने की इजाज़त मिल जाए। कहाँ मिल जाए? आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के सर पर प्यार से हाथ फेरा और उसके लिए दुआ भी फरमाई और उसके गले में खूबसूरत हार आ गया और उसके पाँव सुर्ख हो गए और उसको हरम में रहने की इजाज़त भी अता फरमा दी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट यूनिट में हम मजीद कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड बातें सुनेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो
हो तो ऐसा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। दीन दुनिया के आदाब सीखे जहां, दीन दुनिया के आदाब सीखे जहां। बच्चों, आज के जोग्राफी पीरियड में हम एक मुबारक मकाम के बारे में बात करेंगे। वो जगह इस्लाम के तारीखी मकामात में से एक मुबारक मकाम है और उसे मकाम इब्राहिम कहते हैं। क्या कहते हैं? मकाम इब्राहिम। जी, ये वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की थी और आज हम इससे मुताल्लिक़ कुछ अहम बातें सीखेंगे। बच्चों, जब तामीर करते हुए खाना काबा की दीवारें बुलंद होने लगी तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर पर खड़े होकर खाना काबा की तामीर की। खाना काबा की तामीर के दौरान जैसे जैसे दीवार बुलंद होने लगी, वो पत्थर जिस पर आप खड़े थे वो भी बुलंद होने लगा। खाना काबा की तामीर के दौरान इस पत्थर पर जब आपने अपने मुबारक कदम रखे तो आपके मुबारक कदम के निशानात इस पर छप गए। आजकल ये पत्थर एक शीशे के खोल में महफूज है जो बुलेट प्रूफ और हीट प्रूफ है। इसके आसपास सोने की जाली लगी हुई है जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाती है। जो लोग खाना काबा खाते हैं वो उस पत्थर की जियारत भी करते हैं। बच्चों, आपको कुछ खास बातें बताओ। कुरान पाक में मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है और इस मकाम पर दुआ भी कबूल होती है। अल्लाह पाक हमें भी खाना काबा की जियारत और मकाम इब्राहिम के पास इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चले, आज के लिए इतना काफी है। अब इंशाल्लाह अगले लेसन में हम एक और जगह के बारे में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। दीन दुनिया के आदाब सीखे जहां, दीन दुनिया के आदाब सीखे जहां। बच्चों, हमारा मैथ का यूनिट शुरू हो गया है और आज हम मैथ के यूनिट में कुछ मज़ेदार और दिलचस्प एक्टिविटी करेंगे। सबसे पहले देखें ये सवालात। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 10 ही है ना, देख लें, सोच लें फिर। अच्छा जी, 20 माइनस 10 इक्वल्स टू, ये भी 10 है। 6 प्लस 4, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू जी। 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 6 प्लस 4 इक्वल्स टू। चले बच्चों, अब मैं आपको इस नंबर के बारे में इस्लामी इंफॉर्मेशन देता हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख को पैदा हुए। ज़मीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे और जन्नत मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख को बनाए गए। मुसलमानों की एक ईद जिसे हम बकरा ईद कहते हैं वो भी इस्लामी महीने ज़िलहज शरीफ की 10 तारीख को होती है और इस ईद के मौके पर मुसलमान अल्लाह पाक के हुक्म पर जानवर कुर्बान करते हैं। अब बढ़ते हैं एक और नंबर की तरफ। ये बताइए कि 13 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 7 प्लस 6 इक्वल्स टू 15 माइनस 2 इक्वल्स टू 13। चलिए, अब इस नंबर के बारे में भी मैं आपको कुछ इस्लामिक इन्फॉर्मेशन सुनाता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत फरमाने के बाद 13 साल मक्का शरीफ में रहे। इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हो का इंतकाल 22 जमादुल उला 13 हिजरी को हुआ था। इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हो की विलादत आमुल फील यानी हाथी वाले वाक़ये के 13 साल बाद हुई। तो आज हमने 10 और 13 नंबर के बारे में कुछ इस्लामी मालूमात सीखी। अब हमारे यूनिट का वक्त खत्म हो गया है। इंशाअल्लाह कल हम मैथ के मजीद सवालात के साथ आएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट स्टार्ट हो चुका है। इस यूनिट का क्या नाम है? जी, हमारे यूनिट का नाम इस्लामियात है। दीन दुनिया के आदाब सीखे जहां, दीन दुनिया के आदाब सीखे
यूनिट स्टार्ट हो चुका है। इस यूनिट का नाम इस्लामियत है। तो बच्चों, आप सबको याद है कि हमने पिछली यूनिट में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में कुछ बातें सुनी थी। क्या सुनी थी? आज हम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के एक और अहम वाक़ये के बारे में बात करेंगे। बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक दो कंडीशंस है या दो पार्ट कह लें। वो दो कंडीशंस ये थी, एक वो कंडीशन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान नहीं किया था, जिसे ऐलान नबुव्वत से पहले का वक्त कहा जाता है। दूसरा वो वक्त जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में ये ऐलान कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। क्या है? आज हम ऐलान नबुव्वत से पहले के एक मशहूर वाक़ये के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? बच्चों, उस वक्त अरब में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। ये लड़ाइयाँ सालों तक चलती रहती थी और सब लोग उन झगड़ों से तंग आ चुके थे। ना दिन को चैन था, ना रात को सुकून। सर, उन लड़ाइयों को कैसे खत्म किया गया? कुछ समझदार लोगों ने सोचा कि इस मसले का हल निकालने के लिए एक मीटिंग की जाए। फिर तमाम खानदानों के बड़े बड़े लोगों को जमा किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस मीटिंग में शरीक हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने ये सजेशन दी कि इस कंडीशन को ठीक करने के लिए एक एग्रीमेंट करना चाहिए। सब ने मिलकर ये पॉइंट बनाए। नंबर 1, मुल्क से बेअमनी यानी लड़ाई झगड़े वगैरह दूर करेंगे। नंबर 2, मुसाफिरों की हिफाजत करेंगे। नंबर 3, गरीबों की हेल्प यानी मदद करते रहेंगे। नंबर 4, जिस पर जुल्म होगा उसको सपोर्ट करेंगे। नंबर 5, किसी जुल्म करने वाले को मक्का शरीफ में नहीं रहने देंगे। सबने कसम खाई कि इन पॉइंट को फॉलो करेंगे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एग्रीमेंट बहुत पसंद आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, इस मुआहदे से मुझे इतनी खुशी हुई कि अगर इसके बदले में कोई मुझे सुर्ख ऊंट भी देता तो मुझे इतनी खुशी ना होती। इस मुआहदे को हल्फुल फुसूल कहा जाता है। प्यारे बच्चों, देखा आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो एग्रीमेंट कितना पसंद था, जिसकी वजह से झगड़े खत्म हो गए। तो हमें भी लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले यूनिट में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक और खूबसूरत वाक़या सुनेंगे। बच्चों, अब मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूँ। होमवर्क ये है कि आज हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में जो बातें सुनी है वो याद रखनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अब मेरे यूनिट का टाइम खत्म हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा स्कूल हो तो ऐसा है स्कूल हो तो ऐसा स्कूल हो तो ऐसा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया